Hello students, today I am going to teach machine learning. You know that machine learning is a part of artificial intelligence, and machine learning and deep learning is very important things these days. All the important courses like Scalar is also providing machine learning courses, and then deep learning and all, how the data analysis is going on, and how the analysis of huge amount of data is going on through machine learning, and how we are training the machine to give the appropriate result on appropriate time. That is all machine learning is all about. Machine learning comprised of lots of algorithm. Through algorithm, data is being analyzed. So what is machine learning? I will tell you. It is a subset of artificial intelligence that focuses on developing algorithm that enable computer to learn pattern and make decision without being explicitly programmed. मीन्स मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डोमेन है जो फोकस करता है ऑन डेवलपिंग एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए दैट इनेबल कंप्यूटर टू लर्न पैटर्न एंड मेक डिसीजन। कंप्यूटर को इनेबल करता है कि कंप्यूटर क्या करे, पैटर्न को सीखे और डिसीजन बनाए विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, मतलब एक्सटर्नली आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखना पड़े। वी हैव लॉट्स ऑफ चैट जीपीटी टूल। अभी नाउ यू नीड टू लर्न चैट जीपीटी टूल्स। जैसे क्या है कि पीपल आर टेलिंग कि चैट जीपीटी क्या है, ये लोगों की जॉब खा जा रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। द पीपल हु इज ट्रेन इन चैट जीपीटी, इफ एनी कंपनी विल हायर अ पर्सन जो आधे घंटे के काम को 5 मिनट में कर देगा, तो ओबियसली द कंपनी विल हायर दैट पर्सन ओनली। सो इट इज़ लाइक दैट, एंड द वर्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक दैट। जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ कि यू हैव गिवन अ शुगर टेस्ट, एंड यू गॉट अ रिपोर्ट कि आपकी शुगर इतनी है, एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व फॉर अ स्वीट, then you will get the recommendation that you have this much of sugar, so you should not buy this sweet. So ये क्या है? इट इज़ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस मीन्स आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में आपका डेटा, जो आप किसी मेडिकल ऐप में अपना जो हेल्थ चेकअप कराते हो, तो शुगर एनालिसिस का टेस्ट होता है। उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन यू आर गेटिंग द रिकमेंडेशन दैट यू शुड नॉट eat this much of sugar. So that is machine learning. It is widely used in areas such as image recognition. Image recognition is again will be the visual part हो जाएगा, जहाँ पे जैसे nowadays we are uploading images, different kind of images, and in Google Photos we have our images, and then Google Photos is asking us also sometimes that is this image belongs to this person, means what is this? This is image recognition, means वी आर ट्रेनिंग अ मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? मशीन को ट्रेन कर रहा है बाय फीडिंग डेटा। वी आर फीडिंग मोर एंड मोर डेटा, और मशीन ट्रेंड हो रहा है कि यूज़र इज़ प्रोवाइडिंग दिस मच ऑफ इमेज, तो अगर वो सिमिलर इमेज है, देन वी आर गेटिंग द मैसेज दैट इज दिस इमेज बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर पर्सन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड प्रेडिक्टिव लर्निंग के लिए अभी बहुत एल्गोरिदम है। नाउ डेज द थिंग इज यू आर गेटिंग, इट इज़ कॉल्ड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की डोमेन है कि people are hiring those individual, जैसे now people are having investing their money in share market, so they are having the prediction on the share market कि this which company has more share, which has less share. So here predictive analysis plays a very vital role. The algorithm learns by interacting with an environment and receiving rewards on penalties. Now here are the some key aspects of machine learning. What are the key aspects? What are the types of key learning? Types of learning, first is supervised and another one is unsupervised. So supervised algorithm is trained on labeled data, means it is some organized data. Example, classification and regression task. I will tell you what is classification or regression task. Regression क्या है? Regression एक analysis है. Regression analysis
आई विल टेल यू इन डिटेल कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है. नाउ अनसुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिदम वर्क्स विथ unlabeled data to find pattern. अनलेबल डेटा व्हेन जब हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम जब फ़ोन में लॉक डालते हैं, तो इट इज़ द ह्यूमन हु इज़ प्रोवाइडिंग द पैटर्न टू अ मशीन. तो इट इज़ ऑलवेज आवर ह्यूमन कॉमन सेंस कि वो ये पैटर्न लगाना चाहता है, तो मशीन उसको फिर सेव कर लेता है कि दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस पर्सन फोन. सच एज क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन, reinforcement. So this is one of the branch of artificial intelligence. Machine learning की categorization है supervised and unsupervised. Supervised means label data, the data which is organized, and unsupervised means the data which is not organized. Now, what are the common algorithms? First one is linear regression for predictive continuous values. Logistic regression. लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे हम कुछ मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम एलपीपी पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. हमें मैथ्स की भी कुछ कुछ मैट्रिसेस जानना होगा, मैट्रिसेस, सेट्स, फिर हमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड हमें प्रोबेबिलिटी की भी नॉलेज रखनी पड़ेगी. लीनियर रिग्रेशन फॉर प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस वैल्यूज. लीनियर रिग्रेशन हम यूज़ करेंगे व्हेन यू नीड टू ड्रॉ a bar chart or a line chart, and when we need to provide the appropriate data ki these kind of data I'm going to use in my chart. Logistic regression for binary classification tasks, decision tree for classification and regression, and then support vector machine for separating data into categories. Support vector machine क्या करता है कि डेटा को न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क में डिवाइड करता है. न्यूरल नेटवर्क क्या है? फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए. मीन्स क्लस्टरिंग जैसे फॉर अनसुपरवाइज ग्रुपिंग ऑफ डेटा. तो कॉमन एल्गोरिदम कौन कौन से हैं मशीन लर्निंग में? जैसे लीनियर रिग्रेशन मैंने आपको बताया, जिसमें हम प्रेडिक्शन वैल्यूज डालते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है, एंड डिसीजन ट्रीज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. एंड नेक्स्ट वी हैव सपोर्ट वेक्टर मशीन जिसमें डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें न्यूरल नेटवर्क होता है. न्यूरल नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. न्यूरल नेटवर्क इज जस्ट लाइक द न्यूरॉन ऑफ आवर ब्रेन. तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन, कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है. कि व्हेन वी गेट सम इम्पल्स, जैसे वी आर गेटिंग some for example some ant bite us, then we are getting an impulse. It goes from our skin to the sensory, through the sensory organs to our brain, and that is the neuron. So based on that, ये न्यूरल नेटवर्क नाम रखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंसर्स का. नाउ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कौन से होते हैं? पहला है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. पहली बात होता क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स and techniques used by computers to learn patterns from data, make predictions, or automate decision making without explicit programming for each task. Machine learning algorithm एक set of mathematical rules और techniques है जिससे कंप्यूटर पैटर्न को लर्न करता है फ्रॉम द डेटा. वो डेटा जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, मेक प्रेडिक्शंस और ऑटोमेट डिसीजन मेकिंग, और वो प्रेडिक्ट करता है. जैसे वी सॉ फॉर सम ड्रेस मटेरियल या फिर बैग हम किसी साइट से शॉपिंग करते हैं, तो बेस्ड ऑन द आवर टेस्ट वी आर गेटिंग द रिकमेंडेशन दैट दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, दैट इज़ गुड. सो ये क्या है? इट इज़ ऑटोमेशन विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग. बिना प्रोग्रामिंग के, बिना कोई इनपुट दिए हम क्या कर रहे हैं? वी आर गेटिंग द सजेशन. नाउ एल्गोरिदम में हम पढ़ेंगे सुपरवाइज लर्निंग. What is supervised learning? Learns from labeled data where both input features and output labels are provided. एल्गोरिदम क्या कैसे काम करता है? जहाँ पे हमें लेबल डेटा मिलते हों जिसमें दोनों इनपुट क्या है? जो फीचर्स हैं, डेटा के जो फीचर्स हैं, और जो आउटपुट है दैट इज़ द लेबल्स है. नाउ इसका गोल क्या है? प्रेडिक्ट आउटकम फॉर न्यू एंड अनसीन डेटा. सुपरवाइज लर्निंग का गोल हम क्यों यूज़ करते हैं सुपरवाइज लर्निंग? ताकि हम आउटकम्स कर सकें न्यू एंड अनसीन डेटा का. व्हाट इज़ द एग्जांपल? रिग्रेशन प्रेडिक्ट करता है कंटिन्यूस वैल्यू. जैसे हाउस प्राइसेस, एल्गोरिदम कौन से यूज़ करेंगे? लीनियर रिग्रेशन. जैसे हाउस प्राइसेस किस एरिया में कितनी हाउस प्राइसेस बढ़ रही हैं, जैसे बेस्ड ऑन द
rate of a land, the house prices is increases. Classification क्या है? Predict categories, for example spam versus non spam email. हम जैसे कैटेगराइज करना हम जब सीख जाते हैं, जैसे प्रायरली when this artificial intelligence was not into picture, then what was happening, then many people used to get the email id of many people, and they were sending some spam messages, and क्या होता था कि people were not aware that this is spam and this is not, so they were just clicking on the email and getting the spam message. And spam message क्या होता था? It was a cookie which was taking the confidential information or sometimes the user id and password of the user. तो इसका एल्गोरिदम कौन सा है? डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन. दीज वी विल डिस्कस इन डिटेल. अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जिसमें अनलेबल डेटा जैसे पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ते हैं. इसका गोल है डिस्कवर हिडन स्ट्रक्चर और ग्रुपिंग. जो हिडन स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो. जो एथिकल हैकिंग होती है वेयर द पर्सन ट्राई टू कैच अ पर्सन who is unethically trying to get the data and trying to take the data from some users. तो वहाँ पे हम अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम यूज़ करके उस अनएथिकल हैकर को पकड़ते हैं. वी यूज टू ट्रैक द आईपी एड्रेस एंड ऑल. सो व्हाट आर द एग्जांपल? क्लस्टरिंग मतलब डेटा को ग्रुपिंग करना. ग्रुप डेटा पॉइंट्स में क्या हो जाएंगे? कस्टमर हो जाएगा और सेगमेंटेशन हो जाएगा. एल्गोरिदम क्या होगा? के मीन्स और डीबीएस कैन. हमने के मैप पढ़ा था जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते थे. अभी के मीन्स आ गया. इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले क्या था कि इट वाज नॉट वेरी नोन, बट नाउ अ डेज people or institutions or universities are providing courses where they are deeply teaching the students about few of the algorithms, that how these algorithms are helpful, and the student who is knowledgeable in these algorithms is beneficial for any organization, or that organization used to hire that individual based on the knowledge in about several algorithms. Next we have it is dimensionality reduction. Reduce data complexity while maintaining important feature. ये अगेन काम हो गया डेटा एनालिसिस का, जब हमारे पास बहुत डेटा हो और अगर कॉम्प्लेक्स डेटा हो. फॉर एग्जांपल वी आर स्टडिंग द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड scientific computation, then the data is always complex. The mathematical paradigm of the data is always complex. तो ये क्या करता है? It used to reduce the complex data and it used to simplify into a more straightforward or more straight data which is understandable by the user. So इसमें कौन सा एल्गोरिदम यूज होगा? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA. I will be discussing all the algorithm one by one. Principal component analysis क्या होती है? Now reinforcement learning क्या होती है? This is a part of child psychology also. जब हम reinforcement देते हैं बच्चे को, वहाँ पे भी reinforcement learning होती है. तो हम मशीन को अब कैसे reinforcement देंगे? The algorithm learns by interacting with an environment and receiving rewards or penalties. Reinforcement means जैसे हम child psychology में पढ़ते हैं कि when a child is doing something good then we are giving rewards, and when a child is not doing something then we are giving the punishments. means उससे बच्चे में clarity आ जाती है that when I will do anything good then I will be getting a reward, and if I'll do anything wrong then I'll be getting the punishment also. So just like that, reinforcement learning means interacting in environment and receiving rewards or penalties. इसका goal है maximize cumulative rewards over time. Example है Q learning and deep Q network DQN. As I told that we will be discussing about these algorithm one by one कैसे काम करता है. Now semi supervised learning. Semi supervised learning क्या है? Mix of supervised and unsupervised. Supervised और unsupervised का combination है semi supervised, using both labeled and unlabeled data. Goal क्या है? Improve learning accuracy and limited labeled data. हमारे पास जब लिमिटेड डेटा हो और हमें एक्यूरेसी भी चाहिए, देन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम.
इसका एग्जांपल है सेल्फ ट्रेनिंग एल्गोरिदम। वैसे एल्गोरिदम जो जैसे बेस्ड ऑन सम डेटा, जब कोई चैट जीपीटी टूल के थ्रू हम डेटा जनरेट करते हैं विच इज़ कॉल्ड जनरेटिव एआई, जब हम डेटा जनरेट करते हैं और मशीन अपने आप को खुद ट्रेन करती है बेस्ड ऑन द डेटा, देन इट इज़ कॉल्ड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? व्हाट इज डीप लर्निंग? एडवांस मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट एंड लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम पढ़ रहे हैं बट इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, वेरिएशंस है। तो जब हम एडवांस में मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं जिसमें मशीन लर्निंग में वो एआई क्या कर रहा है, न्यूरल नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स है, अभी क्या है, लॉट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज आर गोइंग ऑन, तो lots of employees are working, so calculation of their salary based on their how much salary deduction and how much increment or whatever bonus they have got, तो ये एक डेटा सेट हो जाता है and companies are hiring people and they obviously they don't want to hire more people to do few work, so they are hiring a person who has a tendency to do the work in less time. And now क्या होता है in every field, like deep learning is there in marketing also, deep learning is there in medical also, deep learning is there in IT also. So जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पैटर्न को एनालाइज करना होता है तो हम डीप लर्निंग करते हैं। गोल क्या है? परफॉर्म टास्क लाइक इमेज रिकॉग्नाइजेशन का काम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम है, एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग है। ऑटोनोमस ड्राइविंग मीन्स टेस्ला। इसका एग्जाम्पल है कॉन्वॉन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, CNN जिसे बोलते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN। पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है लीनियर रिग्रेशन, अगेन जो प्रेडिक्ट करता है कंटिन्यूअस आउटकम्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो बाइनरी क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री जो स्प्लिट डेटा इनटू ब्रांचेस फॉर डिसीजन मेकिंग। हमने जब पढ़ा था बाइनरी ट्री हमने पढ़ा, तो वी नो द बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट कि एक रूट चाइल्ड होता है, देन लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड का अगेन लेफ्ट चाइल्ड। तो हमने ट्री ट्रेवर्सल भी पढ़ा है, तो हमें डिसीजन ट्री बनाना होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव रैंडम फॉरेस्ट जो क्या करता है, इंसेबल मेथड यूजिंग मल्टीपल डिसीजन ट्री। इसमें रैंडम फॉरेस्ट मतलब डिसीजन ट्री का कॉम्बिनेशन। जब हम बहुत सारे डिसीजन ट्री बना लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसे बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट। के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होती है? ग्रुपिंग डेटा इनटू क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है ग्रुपिंग करना, किसी पार्टिकुलर फॉर्म में डेटा को ग्रुप करना इस क्लस्टरिंग। नेव बेस क्या करता है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। जब हमें प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है मैथ्स में भी कि प्रोबेबिलिटी डाइस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ अ क्वाइट गुड कंसर्न नाउअडेज। लोग जब पैसे लगाते हैं तो दे यूज टू एनालाइज द डेटा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों के रिजल्ट होते हैं 10th के बच्चों के, तो बहुत बार ही उनके प्री बोर्ड्स के बेसिस पे उनके डेटा को एनालाइज करके डेटा निकाला जाता है कि दिस मच ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट 90% एंड अबव, तो दिस इज कॉल्ड probability based analysis. Now we have support vector machine which classify data by finding an optimal boundary, means we need to know कि हमारी बाउंड्री कहाँ से है, कहाँ तक है, एंड वी विल बी इन लॉस अगर हमने उससे आगे पैसे लगाएं, तो वहाँ पे ये SVM यूज़फुल होगा। नेक्स्ट वी हैव न्यूरल नेटवर्क जो मिमिक ह्यूमन ब्रेन फॉर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। मिमिक मतलब ह्यूमन ब्रेन की कॉपी है, न्यूरल नेटवर्क क्या है? ह्यूमन ब्रेन की कॉपी है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे एक है रिग्रेशन एल्गोरिदम इन मशीन लर्निंग। रिग्रेशन एल्गोरिदम क्या है? सुपरवाइज लर्निंग है यूज टू प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटकम बेस्ड ऑन इनपुट डेटा। जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे यू नो दैट कंप्यूटर प्रोग्राम is used to do the is used to find out the mathematical programming also. I have also taught you many programming जिसमें mathematical terms होते हैं, जैसे मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम ये सब पढ़ा है, फाइबोनेसी। तो जब हम कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटकम्स चाहते हैं, हमने कुछ इनपुट दे रखा है, जैसे मैट्रिसेस, सपोज मैट्रिसेस हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि थ्रू सम जनरेटिव AI वी कैन गेट सम न्यूमेरिकल आउटकम, तो उसके लिए हम रिग्रेशन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं।
These algorithms find relationship between independent variable जिसको फीचर्स बोलते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको टारगेट्स बोलते हैं। टारगेट्स या आउटपुट, हमें क्या आउटपुट चाहिए, हमें क्या आउटपुट चाहिए। So this is regression algorithm. This is called regression algorithm. For more detail, I'll be teaching in the next video. Till then, thank you very much. Have a nice day.